Okay, so till what point we have covered on Saturday? Can you just recall me, please? We have started control structures, right? And elif हो गया था क्या आपका? Tell me. नो मैम, नो मैम, आप ऐसे नेस्टेड बोल रहे इफ Yeah, तक हो गया हो, इफ था। से only we स्टार्ट have करना है, इफ। completed this much, yes, till nested if else. ठीक है, तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग जो भी हम लोगों ने देखा था, फाइन, क्योंकि 2 दिन हो गए इन बिटवीन, तो हो सकता है भूल जाओ, यस, होता है ना, हम लोग भूल जाते हैं, बहुत सारा हॉलीडे के दिन बहुत सारी एक्टिविटी होती है तो वो इरेज हो जाता है। Okay, so control statements are nothing but just that mentions flow of your execution, right? जो भी आपके statements होते हैं सारे, program is nothing but your set of instructions, right? And that control statements are nothing but just determines the execution flow of your program, right? So what are the different control statements we are going to see here is selection or conditional. Yes, selection or conditional मतलब क्या होता है, in which you are just checking some condition, and on base that condition, if that condition is true, you are just printing something or just executing some block, or if that condition is getting false, then you are just performing something, right? So this is nothing but your conditional task. And then you it comes iterative control statements. In this you have to just execute some statements repeatedly, right? So this is nothing but your iterative statements. So we have started with conditional statements. We have seen if statement, simple if. When these if statements get executed, tell me. Yes, simple if. When and only when your given condition is true, चॉइस है then आपके पास। यस, नहीं मतलब कब होती है वो लाइक एग्जीक्यूट, वो मैंने पूछा है। तो जब आप दी हुई कंडीशन है इफ के अंदर, जब वो ट्रू होती है, देन एंड ओनली देन जो भी अंदर का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होके समथिंग कुछ तो प्रिंट होगा। इफ वो कंडीशन फॉल्स होती है, इट विल डायरेक्टली कम आउटसाइड ऑफ योर लूप। यस और नो इफ का याद यस है? मैम। हम्म। अभी एल्स में जो ये कंडीशन फॉल्स होता है उसके लिए सिंपल इफ में कोई हम लोगों ने नहीं सेट करके रखा था एक सेपरेट ब्लॉक, बट यू विल गेट सम एडिशनल, you will get some additional block here in if else statements for your false condition, right? If your condition gets false, then you will have some separate else block where you will just write some statements which will execute only when your condition will be false. यस करेक्ट है। यस मैम। देन योर नेस्टेड, नेस्टेड में क्या होता था, एक लूप के अंदर हम दूसरा लूप इंसर्ट करते थे, राइट? एक लूप के अंदर एक दूसरा लूप, इज नथिंग बट जस्ट योर नेस्टेड if else statements. Yes, you have seen on Saturday nested also. Yes. हाँ, अभी जो हम लोगों ने सैटरडे देखा था, सैटरडे एक प्रोग्राम किया था हम लोगों ने। यस, सैटरडे एक प्रोग्राम किया था नेस्टेड का। ये सोनू, कैन एनीवन टेल मी नेस्टेड का कौन सा प्रोग्राम हम लोगों ने सैटरडे को किया था? इवन यस, एंड ऑड शायद। नहीं नहीं, एकदम सिंपल वाला जो नेस्टेड का मैंने करके दिखाया था। आपको याद है क्या गाइस? अगर एग्जैक्ट इक्वल मैम टू है क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू। yes 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 that one, that one. ठीक है, so I'll just for your kind information I'll just write it again, right? So end, हम लोगों ने क्या किया था, सिंपल एक प्रोग्राम किया था, enter value for a एंड बी, दो वैल्यूज का कंपेयर करना है। वी आर जस्ट डूइंग वन प्रोग्राम, यहाँ पे हैश करके लिख देती हूँ। यस, टू कंपेयर two numbers, right? So we are just doing one program to compare two numbers. So I have taken one number, same way you have to take another number from user, right? Put and same way just write one statement for user, enter value for b, right? Just two values we have taken from user and we have checked that if they are exact equal or not, right? So this is for exact equal, right? So this condition will be for checking these two values are exact equal or not, right? So I'll just print one statement, yes, equal, remember ये किया था, याद आ रहा है क्या? यस मैम।
तो अभी इसके बाद एक एल्स लिख देती हूँ और एल्स में मुझे फिर से समथिंग एक कंडीशन लिखनी है। अभी थोड़ा सा ग्रेटर के लिए हम लोग चेक करेंगे, इफ ग्रेटर एंड लेस दोनों के लिए चेक करेंगे भाई। इफ ए इज लेस देन बी विल जस्ट प्रिंट सम स्टेटमेंट हियर। ए इज लेस देन ऐसे कर देती हूँ, ए इज देन बी ऐसे एक स्टेटमेंट डाल देती हूँ भाई। अभी इसके बाद फिर से मुझे एस के लिए इफ एंड एल्स, सॉरी एल्स, एल्स के बाद फिर से मैंने एक इफ डाला था एंड आई हैव चेक, आई हैव रिटन again one condition for greater than, right? So print, we will just print some message like E is greater than B, right? So that's it. ये हमारा प्रोग्राम था just to compare two numbers, right? We'll just check क्या है उसका रिजल्ट। py nested ऑलरेडी मेरे पास नाम है, I'll just name it like nest.py, fine. So run your module and then check what the concept we have performed, fine. So it is asking for first value, so if I just given one value as a 10 and second b value as 20, so what should be your result set? Tell me what should be the output. E is greater than 10. E is greater than 10. No, I just I'm not getting your point. What A should is be the less than result? B. Yes, A is less than B, is it? देखो ये दो वैल्यूज हम लोगों ने डाले हैं। A की वैल्यू हम लोगों ने क्या डाली है? फर्स्ट सपोज इफ वी हैव कंट्रोल Z, यहाँ पे लिख देती हूँ A की वैल्यू यूजर ने डाली है 10 एंड इफ सपोज B की वैल्यू यूजर ने डाली है 20, yes, then thus two are exact equal, yes, no, then it will get outside of this if loop and it will execute the next further statement, then it will come inside this else loop and it will just check this another if condition, is A is less than B, yes it is, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इफ का लूप कब एग्जीक्यूट होता है? जब वो एग्जैक्ट दी हुई कंडीशन एग्जैक्ट सेटिस्फाई होती है तभी, फाइन। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इट विल प्रिंट A is less than B। इज इट क्लियर? यस मैम। यस, ये वाला प्रोग्राम हम लोगों ने ऑलरेडी सैटरडे को किया था, बट अभी ये मैंने फिर से क्यों किया है, आई जस्ट एक्सप्लेन। अभी नेक्स्ट आपका जो है स्टेटमेंट सिलेक्टिव और कंडीशनल स्टेटमेंट इज नथिंग बट योर इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, राइट? सो इफ एलिफ स्टेटमेंट इज नथिंग बट जस्ट एब्रीविएशन ऑफ एल्स इफ, राइट? जो अभी हम लोगों ने किया था, राइट? इसे ही अभी एल्स एंड इफ ये दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? एलिफ बन जाएगा। ये दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एलिफ बन जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो एलिफ इज नथिंग बट जस्ट एब्रीविएशन ऑफ एल्स एंड इफ। वी हैव टू जस्ट combine these two statements into one statement. Is it clear? और ये कब यूज करते हैं? जनरली व्हेन यू हैव मल्टीपल पॉसिबिलिटीज फॉर योर वन प्रोग्राम स्टेटमेंट। व्हेन इफ यू हैव मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, देखो अभी जो यूजर ने दो डाले हैं नंबर्स वो एग्जैक्ट इक्वल भी हो सकते हैं, ग्रेटर देन लेस देन भी हो सकते हैं, तो बहुत सारे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है। सो इफ यू वांट टू चेक नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज देन यू हैव टू जस्ट यूज दिस काइंड ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट्स। फाइन, जब भी आपको चेनिंग करनी है कंडीशंस की, फाइन, वन बाय वन एक के बाद एक सिंपली कंडीशंस फॉर्म करने हैं, भाई चेन्ड कंडीशन, nothing but chained condition, yes. So when you have to form chained condition then you have to use this concept of if else statements. Is it clear? Yes. यस मैम। सो सिंटैक्स कुछ भी डिफरेंट नहीं है, जहाँ पे हम लोगों ने एल्स एंड इफ को दो डिफरेंट स्टेप्स में लिखा था वही दो स्टेप्स सिंपली कंबाइन हो रहे हैं। देखो अभी सिंटैक्स क्या है, इफ लिखोगे, कंडीशन लिखोगे, उसके बाद जो भी इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक के अंदर के स्टेटमेंट लिखना है, देन डायरेक्टली इट कम्स स्टेप ऑफ इलिफ एंड यू हैव टू स्पेसिफाई कंडीशन। एल्स में कभी भी आप कंडीशन नहीं स्पेसिफाई कर सकते, फाइन। अगर एल्स में कंडीशन स्पेसिफाई करनी है देन यू अगेन हैव टू राइट सेपरेट इफ स्टेटमेंट again if you want to specify condition. So
we are just combining else and if together, yes, to form elif statement. Elif condition and you have to specify your elif statement के block के statements, right? If अगर आपको कोई further कोई condition check करनी है, again you have to write elif and same way you have to mention condition and statement. There is no any limitation of this elif. आप एक program में कितने भी elif डाल सकते हो, fine. And finally for एक single else के लिए जो एक like एंडिंग पॉइंट यू कैन से, फाइन, उसके लिए आपको एक एल्स करके एक फाइनली स्टेटमेंट लिखना पड़ता है. ये फाइनल एल्स के लिए यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई एनी कंडीशन, फाइन. कोई भी लास्ट एल्स के लिए कंडीशन फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है. डायरेक्टली अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो फाइनली क्या प्रिंट होना चाहिए, वो आपका ये एल्स पार्ट में आता है. इज इट क्लियर? यस मैम. तो अभी यही प्रोग्राम को अगर हमें फॉर्म करना है यूजिंग एलिफ, क्या करूँ बोलो? यूजिंग एलिफ क्या हो जाएगा, ये मैं कंबाइन कर देती हूँ. यस, एलिफ हो गया. एलिफ के अंदर वी हैव चेक्ड वन कंडीशन, फाइन. अभी नेक्स्ट एलिफ हो गया. अभी ये तो हमारी लास्ट ही कंडीशन है, फाइन. सो डायरेक्टली मैं एल्स करके ये कंडीशन हटा ही देती हूँ, फाइन. तो ये एल्स करके हमारा डायरेक्टली अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, ये भी नहीं होती है, तो एल्स क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग कि ए इज ग्रेटर. इज इट? यस मैम. ठीक है. और जस्ट सेव एंड रन योर मॉड्यूल एंड चेक. देखो अभी इफ सपोज मैंने 10 डाला है, अभी थोड़ा मैं 20 डाल रहा हूँ. म्यूट योरसेल्फ एवरीवन. इंटर वैल्यू फॉर ए. दिस इज प्लेइंग म्यूजिक. लोड़े लग गए. क्या लेक्चर सुन रहा है, क्या गाना सुन रही है, पता नहीं. ओजस, ये सोजस. हाँ, नाउ सी एंटर वैल्यू ऑफ ए मैंने ए की वैल्यू 20 डाली है. देन आई हैव एंटर्ड वैल्यू फॉर बी इज 10, राइट. सो ये जो हो गया, देखो ये मैंने सिंपली अपोजिट डाला है. यहाँ पे 20 डाला था और यहाँ पे डाला था मैंने 10, राइट. सो अभी यहाँ पे आ जाएगा, इज दिस टू वैल्यूज आर एग्जैक्ट इक्वल? नो. इज ए इज लेस देन बी? यस है क्या? नो. नो. देन क्या करेगा वो, फाइनली क्या कंक्लूड कर देगा वो कि ए आपका ग्रेटर है, राइट. सो ये हम लोगों ने वही प्रोग्राम को सिंपली मॉडिफाई कर दिया है यूजिंग एलिफ. इज इट क्लियर विथ यू ऑल गाइस? टेल मी. यस मैम. करके देखो सब लोग, एलिफ का कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? दिस इज नथिंग बट योर कंसेप्ट ऑफ एलिफ. ठीक है. हाँ, दैट वन. यहाँ से जाओ. ओके, यस डन गाइस. जो भी हम लोगों ने अभी किया करके देखा, टेल मी. यस मैम. तो थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस प्रोग्राम्स मैंने क्या क्या यहाँ पे दिए हैं वो देखते हैं, राइट. उससे पहले और एक हम लोग काम करते हैं. देखो इलिफ का स्टेटमेंट यूज़ करके ना, अभी जो हम लोगों ने कंपेयर किया है ये वाला प्रोग्राम, हम लोग एक करते हैं. देखो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, टेल मी. लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करने का कोई भी अभी तक हम लोगों ने प्रोग्राम नहीं किया है. लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या क्या है, टेल मी. And or So we'll do one program using logical operators as well as this elif concept, right? So I'll just write here problem statement to find a greatest among th. हाँ, 3 नंबर से मुझे ग्रेटेस्ट चाहिए, तो क्या करोगे बोलो. ये 3 नंबर्स है. इफ सपोज यू हैव 3 नंबर्स, ये तीनों नंबर हमें यूजर से लेने हैं. डोंट वरी, वी हैव टू टेक दिस 3 नंबर्स एज अ इनपुट. इफ सपोज फॉर एग्जांपल मैंने दिया है, यू हैव 3 नंबर्स लाइक दिस 10, 20 एंड 30. यू हैव टू कंपेयर एंड यू हैव टू स्पेसिफाई विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग दिस 3 नंबर्स. यस, क्या लॉजिक लगाओगे आप? Ma'am, if A is less if than B, num1 is greater than num2 and num1 is greater than num3, then num1 is greater than other two.
तो मतलब ही क्या करोगे, 1 by 1 यू विल कंपेयर 1 नंबर विथ अदर्स. यस, पहले एक उठाओगे, फाइन, पहले 10 उठाओगे, इससे चेक करोगे ये ग्रेटर देन इससे है क्या, नहीं है. और भी ये थर्ड वाले नंबर से चेक करोगे ये ग्रेटर देन इससे है क्या, नहीं है, फाइन. सो ये नेक्स्ट नंबर पे जाओगे, नेक्स्ट नंबर चेक करोगे अगेन, इफ 20 इज ग्रेटर देन 10, नो. 20 इज ग्रेटर देन 30, नो. यस, उसके बीच में हमें ये दो कंडीशन के बीच में ही एंड वाला वगैरह ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा. I have already told you while we are just seeing the logical operators. Right? When we use generally logical operators, when we have to merge more than two conditions, yes or no? In this case, we have to merge two conditions, yes or no? We have to merge these two conditions. Is 20 is greater than 10 and is 20 is greater than 30. So we have to use one of the logical operator in between these two conditions. Again, the next step will be you will compare this 30 with first 10 and then this 30 will you will compare with this 20. Yes or no? That should be a logic behind your coding. Yes, no, tell me. यस मैम, Now, उसमें सिर्फ दो को कंडीशन लगा के और तीसरे को एल्स लगा के हो जाएगा ना? हाँ, ऐसे हो जाएगा क्योंकि एल्स में फाइनली कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं होती है. यस, ठीक है, वैसे ही करने वाले. चलो करो जल्दी से एंटर. नहीं, हाँ, फर्स्ट एक ले एक्स वाई जेड में ले रही हूँ. आप कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हो. इट्स नॉट मैंडेटरी, यू हैव टू चूज वट एवर द वेरिएबल्स आई हैव टेकन. एंटर सेकेंड value. Right? Maybe I just define third variable z and input enter value. ठीक है. So we have taken three values from user. Then we have to start our this conditional statements. When conditional statements. Now we will check one by one if x is greater than y. Right? अभी इसके बीच में I use logical operators. Right? And is nothing but your logical operators. ठीक है. So x is greater than y and x is greater than z or not. Right? So and के केस में क्या होता है? Tell me. When and only when these two conditions will be satisfied, then and only the real result will be true. Yes or no? That is the concept of and, logical and. Yes? Yes, ma'am. Colon. There should be colon and print whatever the message you have to print. हाँ, अब इसका क्या conclude हो सकता है? अगर x दोनों से greater है. X is the greatest Yes. Yes. तो among the three. greatest ऐसे में लिख देती हूँ. Okay. Now I'll just use elif here and I'll check with another number. Y is if y is greater than x and y is greater than z, then क्या conclude करोगे आप? Colon. There should be colon. So print. Y is the greatest. हाँ, तो y is दे वगैरह लिखना है applicable greatest. राइट, ये हो गया. अभी इसके लिए फाइनल एल्स के लिए देयर इज नो नीड टू मेंशन एनी कंडीशन. राइट, सिंपली मैं एल्स करके अभी अगर ये दोनों नहीं सेटिस्फाई हो रहे, इफ एक्स मेरा ग्रेटेस्ट नहीं है, वाई नहीं है, तो क्या कंक्लूड कर सकते हो? Z is the greatest. एग्जैक्टली. चेक हमारा करेक्ट है क्या? दैट्स इट. हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर का भी यूज किया है एज वेल एज वी हैव यूज एलिफ कंसेप्ट. राइट, so I just quickly run Python programs. ठीक है. तो पहले 10, 20 and 30 same way what I have just explained you, that only numbers I have given as a input. Fine, 10, 20 and 30. क्या आना चाहिए रिजल्ट? 30 is the greatest. Z is, that means Z.
Z इज ग्रेटेस्ट ऐसे आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने प्रिंट वैसे किया है भाई। तो ये तीनों नंबर का कंपेयर होगा एंड फिर जो भी आपने लिखा था वो यहाँ पे प्रिंट होगा। अभी मुझे चाहिए कि डायरेक्टली यहाँ पे 30 इज ग्रेटेस्ट ऐसे आना चाहिए। अभी क्या हो रहा है देखो। हाँ बोलो। अगर आप XYZ ही डाल दो तो क्या बताएगा? नहीं मुझे नहीं समझा। हाँ XYZ मैम आप डालोगे तो डायरेक्टली नंबर देगा ना वो, वही तो मैं पूछ रही हूँ। अगर मुझे मॉडिफाई करना है, अभी क्या हो रहा है 30 ग्रेटेस्ट है, बट यहाँ पे प्रिंट क्या हो रहा है Z इज ग्रेटेस्ट। अभी मुझे प्रोग्राम में जाके देखना पड़ रहा है 30 मतलब किस वेरिएबल की वैल्यू मैंने 30 डाली है, ये सुनो। सो इफ आई वांट द रिजल्ट लाइक 30 इज ग्रेटेस्ट, यहाँ पे जो भी नंबर है वहीं पे मुझे डिस्प्ले करना है, वही नंबर मुझे डिस्प्ले करना है, 30 इज ग्रेटेस्ट। व्हाट शुड बी द सिंगल चेंज इन योर कोड? इन्वर्टेड कॉमा के बाद Quotation जेड। given in L. क्या करना पड़ेगा, x कर लो, बाहर ही निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, इसका एक्चुअल वैल्यू प्रिंट होके बाद में ये स्टेटमेंट उसमें ऐड हो जाएगा। मतलब अगर आपने 10 डाला है तो 10 इज ग्रेटेस्ट, 20 इज ग्रेटेस्ट ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? जिसने क्वेश्चन पूछा था, इज इट क्लियर विथ यू ऑल? टेल मी। यस मैम, यस। हाँ और सबको क्लियर है क्या? अभी सेव करके रन करो तो आपका एक्चुअल जो नंबर है वो प्रिंट हो जाएगा रिजल्ट सेट में। ठीक है, तो अभी थोड़े से वैल्यूज़ भी चेंज करके देखते हैं। 2, 7 एंड 3। अरे 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 कुछ तो गलत हो गया, कॉमा वगैरह डाला है मैंने, आउट निकाल लिया। अभी सपोज 2 डाल देती हूँ, 7 डाल देती हूँ एंड वैल्यू करके 4। ना अभी क्या होना चाहिए, टेल मी। 7 is the greatest. यस 7 इज 7 ग्रेटेस्ट is आ रहा है अभी। greatest. ओके, इज इट क्लियर? एलिफ का Yes, कंसेप्ट क्लियर है, लॉजिकल ऑपरेटर भी हम लोगों ने यूज़ किया है, वो क्लियर है सबको? Yes, yes ma'am. ma'am. ओके, so now we will move towards this practice programs, right? So I have given you two practice programs for this concept of elif guys, right? So दोनों थोड़ा सा पढ़ लो, दोनों थोड़े से लाइक एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम लाइक कंसेप्ट जैसे। देखो जैसे अभी अदर लैंग्वेजेस में आपका स्विच केस होता है, भाई स्विच के बारे में मैंने बताया था कि स्विच पाइथन में तो अवेलेबल नहीं है, बट वी कैन फॉर्म दैट मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम यूजिंग दिस एलिफ कंसेप्ट। ये एलिफ का कंसेप्ट यूज़ करके हम लोग वो मेन्यू ड्रिवन काइंड ऑफ कंसेप्ट फॉर्म कर सकते हैं। यस, अरिथमेटिक सारे ऑपरेटर्स का हम लोगों ने ऑलरेडी एक प्रोग्राम किया था, वही अभी मुझे ये एलिफ यूज़ करके करना है। Yes ma'am. कैसे करोगे बोलो? LS use करके। तो ये दोनों देखो इसमें क्या करना है, सिंपली आपको एक सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करके एक प्रोग्राम फॉर्म करना है आपको। एंड अगर यूज़र चॉइस डालता है 1, तो मतलब जो यूज़र को चाहिए वही ऑपरेशन का रिजल्ट उसे मिलना चाहिए। फाइन, इफ यूज़र आपने स्पेसिफाई किया है 1 इज़ फॉर एडिशन, 2 इज़ फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन। फाइन, सपोज ऐसे आपने लिस्टिंग किया है, इफ यूज़र प्रेस्ड 1 देन इट यूज़र शुड गेट ओनली द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑपरेशन। फाइन, if user enters 4 then it user should get result of only division operation. Fine, so thus kind of some menu driven program you have to form using elif. Fine, ये फर्स्ट आपका है, ये हम लोग करके देखेंगे यहाँ पे, एंड यू हैव टू डू दिस एट योर होम। फाइन, सेकेंड वन सेम है आपको सिंपली करना क्या है, यू हैव टू डिस्प्ले द डे ऑफ वीक्स यूजिंग एलिफ। अभी क्या करना है, एग्जाम्पल के तौर पे भी मैंने एक दिया है। इफ सपोज यूज़र ने 7 इंटर किया, यूज़र से इनपुट आपको नंबर्स में लेना है एंड यू हैव टू डिस्प्ले दैट करस्पॉन्डिंग डे। राइट, यू हैव टू डिस्प्ले दैट करस्पॉन्डिंग डे। इफ यूज़र ने 7 एंटर किया है, यू हैव टू डिस्प्ले संडे। गेटिंग माई पॉइंट? इफ यूज़र ने 1 एंटर किया है तो क्या आना चाहिए, प्रिंट रिजल्ट क्या आना चाहिए? Monday. हाँ, ऐसे आपको करना है। क्लियर है? मतलब समझा है? देखो ये अरिथमेटिक का हम लोग करके देखते हैं, बाकी ये सेकंड आपको अगर ये समझ में आ गया तो ये करना पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, चलो अरे यार, ओके,
तो हमें सिंपली अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, दो नंबर्स लेने पड़ेंगे भाई, दो नंबर्स लेने पड़ेंगे। अभी यही सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यहाँ पे कॉपी कर देती हूँ as a heading of your code, right? As a heading of your code, I'll just paste same, okay? So just number 1 करके मैं एक इनपुट लेती हूँ, int input enter number 1. Way I'm just entering second input from user number 2. You can take any variable name, हाँ guys, input बस अच्छे से दिखने के लिए मैं कर रही हूँ, enter क्या। सो हमें क्या करना है, मैं बताऊँ हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने हैं, बट मुझे एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम फॉर्म करना है अच्छे से। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, Yes, ma'am. हाँ आवाज़ आ रही है ना गाइस, टेल मी। Yes, ma'am. देखो अभी मैं सिंपली यूज़र को मैसेज दे रही हूँ, एंटर 1 और सिंपली अभी सब मैसेजेस दे रही हूँ, प्रिंट एंटर 2 4। अभी ये एक ही स्टेटमेंट में आपने लिखा तो भी चलेगा, बट फॉर योर लाइक सिंप्लीफिकेशन पर्पज आई एम जस्ट राइटिंग दिस सेपरेट स्टेटमेंट्स, राइट? एंटर 3 4 मल्टीप्लिकेशन, राइट? एंड सेम अभी मैं 4 ही लिख देती हूँ, मॉड एंड डिवीजन का वगैरह आप बाद में ऐड कर दो, राइट? मॉड्यूलस का एंड जो भी एक्सपोनेंशियल वाला कंसेप्ट आप ऐड कर दो, मैं ओनली यहाँ तक कर भी दिखाते हैं डिवीजन, राइट? इतना आपको समझ में आ गया तो फर्दर आप ऐड कर सकोगे, राइट? सो अभी ये तो चॉइसेस हम लोगों ने यूजर को दे दिया, यू हैव टू रिसीव दैट चॉइसेस। यस, रिसीव अगर यूजर ने 1 डाला है तो वो कहीं तो एक वेरिएबल में रिसीव होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए। सो नो गाइस, चॉइसेस के लिए मैं सेपरेट एक वेरिएबल लेती हूँ चॉइस, एंड सेम वे आई जस्ट इनपुट दैट चॉइस। इनपुट should be small, input enter यूजर जो भी है उसका चॉइस एंटर करेगा। नाउ अभी हमें यहाँ पे चेक करना है इफ चॉइस इक्वल्स टू 1 तो क्या परफॉर्म होना चाहिए, टेल मी। Addition. Yes, so simply I'm just printing addition concept. So number 1 plus number 2, that's it. Clear? Getting or not guys, tell me. Yes, ma'am. elif का concept use करो, elif choice equals to 2, then what should be your calculation, tell me. It will be subtraction. Number Yeah. 2 no, minus number 1. number 1 minus number 2. Ma'am, number 2 minus number 1 नहीं होगा? नहीं, ऐसे कुछ नहीं करने की ज़रूरत आपको, नंबर 1 नंबर 2 किया तो भी चलेगा। यूज़र ऐसे थोड़ी ना है कि दूसरी वैल्यू ही ग्रेटर डालने वाला है, आपका Yes, ma'am. रिजल्ट फिर माइनस में आ जाएगा, आपको थोड़ी ना पता यूज़र क्या वैल्यू डालने वाला है। यस, Okay. यस और नो? इज इट क्लियर और स्टिल इन कंफ्यूजन? No, ma'am, it's clear. Then again you have to mention your next choice, choice choice equals to 3. Yes, tell me, print number 1 into multiplication. Star number. Yes, your third choice should be, अभी इससे रिलेट होना चाहिए, आपने ऊपर 1 2 3 4 जो लिखा है वही ऑपरेशन नीचे परफॉर्म करो, नहीं तो आपका पूरा प्रोग्राम गड़बड़ हो जाएगा, फाइन। नंबर 2, फाइन। तो ये मल्टीप्लिकेशन एंड एल्स जो भी है आपका, नहीं एलिफ फिर से कर देती हूँ मैं और डिवीजन करती हूँ, और एल्स में सेपरेटली लिखूंगी फॉर इनवैलिड चॉइस। अगर यूज़र हो सकता है ना कोई तो 9 डाल ले 7 डाले, तो उस वक्त में उसे कोई तो इनवैलिड चॉइस करके ही एक एरर मैसेज आना चाहिए, फिर
ऐसे भी कर देती हूँ, equals to 4, then it should perform division operation. So number 1 divided by number 2, division हो गया, and then our last step should be else, and I am just printing some message, invalid choice. अगर ये 1 2 3 4 छोड़ के यूजर ने कुछ भी डाला तो उसे डायरेक्टली ये वाला पार्ट डिस्प्ले होने वाला है. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So we'll just save and we'll check what should be a result. Multi choice elif ऐसे कुछ तो मैं नाम डाल देती हूँ. आप जो भी आपको इजी लगता है वो नाम डाल पाए. सो आई एम जस्ट रनिंग दिस मॉड्यूल एंड वो 2 नंबर की वैल्यू मांग रहा है भाई. सो अभी 2 नंबर मैंने सपोज मैंने 10 डाला, सेकंड नंबर मैंने 5 डाला भाई. एंटर करवा देती हूँ. इमीडिएटली मुझे सारे प्रिंट के स्टेटमेंट आने वाले हैं. ये जो हम लोगों ने प्रिंट के स्टेटमेंट डाले हैं वो मुझे इमीडिएटली आएंगे भाई. सो इट गिवन देयर 1 इज फॉर एडिशन, 2 इज फॉर सबट्रैक्शन. आपको जो भी परफॉर्म करना है यूजर से चॉइस मांगी जा रही, एंटर योर चॉइस भाई. सो इफ आई वांट टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन, so I have given the suitable या जो भी preferable choice है for multiplication right. So if I enter, what should be your result? Tell me. Directly वो यहाँ पे 50 जाएगा. 50 आएगा. Yes, 50. directly ये यहाँ पे आएगा. ये elif में वो जो भी है perform करेगा calculation and it will give you directly 50. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. तो ये स्विच का भी कंसेप्ट जो अदर लैंग्वेजेस में होता है वो आपका ये एलिफ यूज करके ही ये पाइथन में पॉसिबल हो जाता है. Yes, everyone understood? Tell me. Yes, ma'am. 60 से 60 Yes, ma'am. सबको समझ में आया है? ईशान. Okay. Okay, fine. So same way you have to perform this second वाला प्रोग्राम हो, प्रैक्टिस प्रोग्राम. जैसे इसमें तो कोई कैलकुलेशन भी नहीं करना है. जस्ट यू हैव टू रिसीव सम इनपुट फ्रॉम यूजर एंड यू हैव टू प्रिंट अप्रोप्रिएट डे. Yes or no? You no need to just perform any calculations like this, addition and subtraction. You have to just receive one input and then you have to display accordingly that day. तो मैम जैसे फर्स्ट प्रोग्राम में किए प्रिंट 1 एज एडिशन, तो उसमें प्रिंट 1 एज मंडे, प्रिंट 2 एज ट्यूसडे, ऐसा करेंगे? कैसे बताओ? अगर इसमें एंटर 1 फॉर एडिशन है तो इसमें एंटर 1 फॉर मंडे, एंटर 2 फॉर ट्यूसडे. नहीं, ये भी नहीं किया तो भी चलेगा. ये नहीं किया तो भी चलेगा. डायरेक्टली यूजर को एक मैसेज दे दो, जस्ट प्लीज एंटर इनपुट, क्योंकि यूजर का इनपुट ही लेने वाले हो ना. यूजर इनपुट फ्रॉम 1 to 7 ऐसे करके कैसे कुछ तो दे दो. डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट विद दिस चॉइस वाला कंसेप्ट. इफ चॉइस इक्वल्स टू 1, डायरेक्टली यू कैन प्रिंट एज मंडे. इफ चॉइस इक्वल्स टू 2, बिकॉज ये ऊपर लिखना यहाँ पे यहीं पे तो मेंशन कर रहे हो क्या है. यस, नो नीड टू जस्ट राइट दिस कंसेप्ट हियर. Yes, directly you can go for this choice wala concept. Is it clear? Yes, ma'am. You have to just give one message to user कि एक input वाला statement लिखो and then you just directly move toward this choice वाला concept, right? Then now you have to just write this kind of 7 statements, Monday, Tuesday, Wednesday till Sunday. Clear? Yes, ma'am. Done. Yes, ma'am. Okay, fine. अच्छा है, डन हो गया तो अच्छी बात है. ठीक है. देन एनीवन हैविंग एनी इशू इन दिस एलिफ स्टेटमेंट्स? टेल मी. हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस के भी प्रोग्राम किया है. शैल वी मूव फॉरवर्ड टू व्हाइल लूप? Yes, ma'am. ओके, फाइन. सो जो हम लोगों ने ये देखे थे if else, nested and elif, these all are nothing but your selection or conditional statements, right? These all
statements come under this selection or conditional statements. The next type is nothing but your iterative control statements, right? So next type is nothing but your iterative loop statements, right? So under that you it comes while loop, for loop and nested loops, right? So iterative क्या होता है? Yes, कि simply set of statements का आप बार बार repeatedly execution करते हो, right? That is nothing but your iteration, right? Repeated execution of set of statements is nothing but your iterations. Yes or no, guys? Yes, ma'am. ओके सो अभी यहाँ पे सेपरेटली आपको एक काउंटर यूज करके आपको वो बार बार लूप एग्जीक्यूट करना है टिल योर कंडीशन गेट सेटिस्फाई. जब तक आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब तक यू हैव टू इटरेट दैट लूप, राइट? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस ऑल स्टेटमेंट्स. सो सबसे पहले आपका है वाइल लूप, राइट? वाइल लूप इज मोस्टली पॉपुलर फॉर रिप्रेजेंटिंग इटरेशंस, राइट? इटरेशंस को ही रिप्रेजेंट करने के लिए पॉपुलर है ये वाइल फॉर लूप्स. तो अभी इसमें क्या कंसेप्ट है? सिंपली यू हैव टू यूज दिस वाइल कीवर्ड, देन यू हैव टू स्पेसिफाई सम कंडीशन, आफ्टर दैट you have to give colon same like if, then you it will start with your body part of your while, and then you have to mention here compulsory the increment or decrement part of that loop, fine? You have to specify some increments here. Based on that increments your loop will get execute that much like number of times. Yes, so this part is new in this kind of iterative loops, right? So what is the concept of this flow chart here? Okay, so if your condition is satisfied, if your condition is true, you have to repeat that loop till your condition is satisfied. If your condition is false, if your condition is getting false, then it will directly get outside of your loop. Is it clear? Iterative का concept क्या होता है? Because of this statement you will get loop will get iterated. Yes. Yes, no, guys, tell me. Hello, am I audible? मैम इसका एग्जांपल हाँ हाँ, हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखने वाले हैं, डोंट वरी. थियोरेटिकल कंसेप्ट तो पहले सुन लिया करो. Okay, simply if we want to print numbers 1 to 10, yes, if we want to print numbers 1 to 10, right, what we will do is just using while loop. So just हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक काउंटर लेना है, right? एक हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं जो हमें ये पूरे लूप में इटरेट होने के लिए हेल्प करेगा, right? आई जस्ट यूजिंग दिस आई वेरिएबल एंड आई एम जस्ट असाइनिंग विथ 1, क्योंकि मुझे वो लूप स्टार्ट करना है 1 से. देन आई विल यूज हियर वाइल लूप, एंड वाइल के बाद आपको कंडीशन फॉर्म करनी है. तो ये आई जो आपने लिया है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम ए, स्टार्ट विथ 1, सॉरी, स्टार्ट विथ 1, इट विल गो अंटिल 10. जो जब तक वो 10 तक नहीं जाता है, राइट? यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू, व्हाट इट मीन्स, टेल मी. 10 will be included or excluded? included. Yes, because of this equals to symbol 10 will also be get printed, right? Okay, so अभी मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे प्रिंट करना है आई को, राइट? तो आई को मैंने प्रिंट किया है, एंड ये प्रिंट, ये जो भी है आई 1 से लेकर 10 तक बार बार इटरेट किस वजह से होगा? बिकॉज ऑफ this statement, right? I equals to I plus 1. So this is nothing but just your increment, right? You're incrementing I each iteration by 1, right? तो देखो ये कैसे होने वाला है परफॉर्म. आपका जो लूप है वो 1 से स्टार्ट होगा. पहले 1 आपने I को 1 से इनिशियलाइज किया है, right? This is nothing but your initialization statement. It will check here, is I is less than equal to 10? Tell me, is this condition is true? Yes, ma'am. आई क्या है? Yes, ma'am. 1 है ना. 1 Yes. लेस देन 10 है, तो क्या करेगा? प्रिंट करेगा 1 को. यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? यस, पहला नंबर प्रिंट होगा 1. देन आई विल गेट इंक्रीमेंट बाय 1. क्या होगा यहाँ पे? 1 का हो जाएगा 2. यस. Yes, ma'am. Yes. Then 2 again will check here condition 2 is less than equal to 10 है क्या? Yes, it is. Yes, ma'am. Again next step क्या है आपका? प्रिंट करना है आपको I को. Then your 2 will get printed, right, on your output screen. Then again I आपका 2 से क्या हो जाएगा? 3.
Yes, again 3 check होगा, 3 is less than equals to 10 है क्या? Yes it is, fine. So it will again you are printing on the next level, you are printing just I की value, then it will print 3. Again 3 का क्या हो जाएगा? 4. फिर से चेक होगा, 4 is less than equals to 10, yes it is. फिर से वो प्रिंट होगा, टेल कितना होगा वो? 10. 10 तक 10 प्रिंट हो गया, अभी 10 की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 11 हो गई, अभी is 11 is less than equals to 10? नो मैम No, ma'am. No, then your No, ma'am. control get outside of your loop. Clear? हाँ, Yes, अभी ma'am. बोलो, किसने पूछा था? बोलो बोलो. मैम आई की दो वैल्यू कैसे हो सकती है? मतलब आई को हमने पहले 1 बोला है एंड देन फॉर अ व्हाइल आई इज इक्वल टू 1 + 1, मतलब वो 2 हो जाता है. No, I'm not getting your point. Wait, we will just run this program first. Then I'm just answer your. I'll just able to answer your question. Fine. यस मैम. Yeah. While. Okay. While 1.py. क्योंकि y के भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं. So हाँ, बोलो. I इक्वल्स टू I1 + 1 2. हाँ, तो 2 ही तो करना है ना नेक्स्ट इटरेशन पे. आपने क्या पूछा है मुझे? फिर से एक बार पूछो. मैम आई को हमने पहले 1 असाइन किए वैल्यू, उसके Yes. बाद उसमें जाकर वो 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, बट फॉर अ व्हाइल आई की दो वैल्यूज कैसे हो सकती है ना? मतलब वो 1 भी है और 2 भी है, ऐसे No. कैसे? At the end of the loop, you are just increment I की value. Yes or no? At the end of the loop, you are incrementing your value. And ये फिर से यहाँ पे असाइन नहीं होने वाली है. ये जो भी यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही है ना, यहीं पे ये असाइन हो रही है. और just starting your loop, we are just assigning this value to just I. For just starting your loop. Getting my मैम point? यस मैम. मैम सिंप्लीफिकेशन के लिए हम कोई और वेरिएबल नहीं ले सकते क्या? जैसे j = I + 1. No. क्यों लोगे आप? वो तो और भी कॉम्प्लिकेट कर रहे हो आप प्रोग्राम को. तो यस और नो? अभी यहाँ पे क्या हो रहा है देखो. यस, 1 से स्टार्ट हो रहा है आपका लूप. 1 को चेक कर रहे हो आप. 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 हो गया. प्रिंट कर रहे हो आई को. अभी आई की वैल्यू सिंपली क्या है? 1 है. 1 + 1 क्या हो रहा है आपका? 2 हो रहा है. यहाँ पे क्या सेव हो रहा है? देखो, ये भी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ. ठीक है, ये भी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. देखो, पहले मेरा आई है, आई 1 है. 1 + 1 आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. भाई, तो ये 2 जो है, 2 मेरा ये सिंपली क्या हो रहा है? ऊपर जाके फिर से वही चेक हो रहा है. 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है क्या? यस. तो सिंपली फिर क्या हो रहा है? ये सिंपली हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं. अगर नहीं है तो 2 प्रिंट कर दो. फिर से मेरा जो भी है, ये 2 + 1 3 होके उसमें वो फिर से जस्ट जो भी है सेव कर रहा है. सब अगर आपको चाहिए, जैसा अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है, इफ सपोज ये कन्फ्यूजन हो रहा है तो ले लो. चाहिए तो एक्स लेती हूँ मैं एंड सेव करके. अगर ये आई के वजह से आपका कन्फ्यूजन हो रहा है क्या? यस. तो देखो, ये देखो इन्फाइनाइट लूप में चला जाएगा. नहीं, वो आई ही लेना पड़ेगा. वाई बिकॉज ये आई की ही वैल्यू हम लोग फिर से प्लस कर रहे हैं ना उसी में. नो, यू हैव टू टेक हियर आई ओनली. करके देखो ना. जो Yes, भी ma'am. आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होता है ना, यू कैन ट्राई इट. क्योंकि वही आई की वैल्यू आप फर्दर स्टेशन में यूज करके उसमें 1 ऐड कर रहे हो ना. गेटिंग और नॉट? Yes, ma'am. That's why it should be I only. You can't take any other variable. मैम वही मतलब आप नेक्स्ट. हाँ, बोलो. पे जो इंक्रीमेंटेशन में हमें वैल्यू मिल रही है उसको हम सिर्फ यूज कर रहे हैं, वो स्टोर नहीं हो रही है. Yes. No. We are not storing anywhere. We are just using that particular variable for just increment purpose. यही आप स्टेटमेंट और एक अदर वे से कैसे यूज कर सकते हो? बोलो. एक हम लोगों ने असाइनमेंट के कंसेप्ट में देखा है, शॉर्ट हैंड वे से हाउ यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ सेम स्टेटमेंट यू कैन रीराइट अगेन. कैन एनीवन टेल मी? कैसे? अगर ये आपका कन्फ्यूजन होता है ना, जिसका कन्फ्यूजन ये हो रहा है ना, आप डायरेक्टली ऐसे लिखो. देखो, I + इक्वल्स टू 1. क्लियर है? यस मैम. अगर ये ना आपका कन्फ्यूजन हो रहा है ना, सिंपली यू कैन राइट दिस काइंड ऑफ थिंग एंड जस्ट सेव एंड रन. आपका कुछ गलत नहीं आएगा, आपका करेक्ट ही आएगा. क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है.
क्लियर है वाइल लूप सबको? टेल मी। Yes, ma'am. ओके, तो थोड़े से अभी वाइल के ऊपर थोड़े से प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आई हैव गिवन फॉर प्रैक्टिस पर्पस, सो वो हम लोग देखते हैं, राइट। सो ये 4 मैंने दिए हैं वाइल के ऊपर, जस्ट मैंने एक प्रैक्टिस सेट फॉर्म किया है, राइट। सो फर्स्ट इज टू फाइंड सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स एंड ऑल्सो फाइंड एवरेज ऑफ इट, राइट। तो अभी n की वैल्यू ईच एंड एवरी चारों के चारों प्रोग्राम में यू हैव टू टेक इनपुट फॉर योर n ना। n की जो वैल्यू है आपको यूजर से इनपुट लेनी है फॉर ऑल द 4 प्रोग्राम्स, ठीक है। n की वैल्यू, इफ सपोज n की वैल्यू 10 है, इफ यूजर ने n की वैल्यू 10 दिया है, यस, तो आपको क्या करना है, 1 to 10 का सम प्रिंट करना है, एज वेल एज यू हैव टू परफॉर्म एवरेज ऑफ दैट पर्टिकुलर 1 to 10 नंबर्स। इज इट क्लियर क्या करना है? Yes, ma'am. क्या करना पड़ेगा फिर? n की वैल्यू यूजर से लेना है। चलो हम लोग एक परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़े से आप घर पे करोगे, थोड़ा हम लोग यहाँ पे करेंगे, क्लियर है? n की वैल्यू अगर यूजर से लेना है तो मैं क्या कर देती हूँ, ये वाला जस्ट कॉपी पेस्ट करवा देती हूँ। अरे ये क्या हो गया, मेरा ये कॉपी नहीं हुआ क्या? बोलो, अभी n की एक वैल्यू यूजर से ले लो, जैसे यहाँ पे बोला है वैसे करना पड़ेगा। इनपुट एंड देन एंटर value of n, right? I'm just writing some message for user, enter some value for n, अभी क्या करोगे बोलो, तो लूप कैसे स्टार्ट करोगे आप? And sum is equal to 0. हाँ, सम इक्वल्स टू 0। मॉर्निंग का सेशन अटेंड किया था क्या? ओके, चलो, मैंने पहले भी बोला था, जब भी आप ऐसे कैलकुलेशन करके रखने वाले हो जो वेरिएबल्स के अंदर, उसे कभी भी एक हैबिट लगा दो कि 0 से असाइन कर दो, फाइन। इनिशियली 0 से असाइन कर दो। ये असाइन करने का रीज़न क्या होता है कि जब भी कोई कैलकुलेशन करके आप स्टोर करते हो ना, तो बहुत सारे लाइक ऐसे वेरिएबल जो बना के रखते हो आप ना, उसमें गार्बेज वैल्यू आ सकती है मेमोरी में, क्योंकि सम जब भी आप लिखोगे प्रोग्राम में, इमीडिएटली एक मेमोरी में कंटेनर फॉर्म होता है, ये सुनो, तो वो कंटेनर जब फॉर्म होता है, हो सकता है कि उसमें कोई भी गार्बेज वैल्यू आ जाए, राइट। तो उस केसेस में जिसमें जो वेरिएबल्स में हमें कैलकुलेशन करके स्टोर करना है हमें, तो उसे पहले इनिशियलाइज करके रखते जाओ 0 से, राइट। दिस इज गुड प्रैक्टिस एक्चुअली टू जस्ट इनिशियलाइज वेरिएबल्स टू 0, राइट। ओके, तो सेम वे से मुझे मैंने स्टार्ट कर दिया है 1 से। अभी मुझे वाइल करना पड़ेगा। अभी वाइल की कंडीशन क्या लिखनी पड़ेगी हमें, ये कितने लूप कहाँ तक इटरेट करना पड़ेगा बोलो? टिल n करना पड़ेगा ना। अभी 10 हम लोगों ने मेंशन नहीं किया है, ये n की वैल्यू जो है यूजर से ले रहे हम लोग, ये सुनो गाइस, एंटर वैल्यू ऑफ n। अब अभी यूजर ने 10 बोला तो मुझे 1 to 10 नंबर की एडिशन करनी है। यूजर ने 5 बोला तो 1 to 5 नंबर की एडिशन करके सम प्रिंट करना है। यूजर ने 50 बोला तो 1 to 50 नंबर्स की एडिशन करके मुझे सम प्रिंट करना है। इज इट? तो ये लूप कहाँ तक जाना चाहिए? टिल योर n, जो भी XYZ n होगा यूजर ने डाला हुआ, जो भी n की वैल्यू होगी वो यहाँ पे आनी चाहिए। तो उसके लिए आप कैसे लिखोगे, ये I मतलब ही जो आपका लूप स्टार्ट हो रहा होता है, इसके लिए आप ये वैल्यू इनिशियलाइज करते हो, ये आप यहाँ पे इंडिकेट करते हो जहाँ से आपका लूप स्टार्ट होता है, इतना याद रखो। लेस देन इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे आ जाएगा n, मतलब ही यहाँ पे जो वैल्यू इनपुट करेगा तब तक ये लूप चलेगा। 5 डाला तो 5 टाइम्स इटरेट होगा, यूजर ने 10 डाला तो 10 टाइम्स इटरेट होगा, अगर यूजर ने 100 डाला तो 100 टाइम्स ही इटरेट होगा, और आपका वो समेशन प्रिंट होगा 1 to 100 का। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सम करना है ईच 1 to 5। अगर यूजर ने यहाँ पे 5 डाला है, इफ सपोज यूजर ने यहाँ पे 5 डाला है, तो मुझे 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे कंटिन्यूस करके करते जाना है, राइट।
तो एक सम जो हम लोगों ने ऑलरेडी 0 से असाइन करके रखा है उसमें ही हमें सारे कैलकुलेशन करके स्टोर करने। तो ईच एंड एवरी टाइम आप क्या करो, सम की ही वैल्यू उठा लो और उसमें सिंपली आई की वैल्यू जो 1 by 1 इटरेट होने वाली है और इंक्रीमेंट होने वाली है वो सिंपली ऐड करते जाओ। क्लियर है क्या होने वाला है इससे? ये समझ में नहीं आ रहा है? आई इक्वल टू आई प्लस 1, ये सिंपली आपका 1 by 1 इंक्रीमेंट होने के लिए होता है। फाइन, अभी देखो ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर से सुनो। फाइन, इफ यूजर हैज गिवन वैल्यू एज 5, फाइन, यूजर ने अगर n की वैल्यू 5 दी है सपोज, सो मेरा लूप 1 से स्टार्ट हो रहा है। अभी यहाँ पे n की जगह पे क्या आ जाएगा, टेल मी। 5. यस, तो इज 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस इट इज। ठीक है, तो सम ये इसमें क्या आने वाला है, सम में बोलो। सम की अभी वैल्यू क्या है, 0 है। इनिशियली वी हैव असाइन सम टू 0, 0 प्लस आई की वैल्यू क्या है फर्स्ट इटरेशन में 1 है। यस, तो 0 plus 1 it will comes 1 and that will get stored into this same variable sum. Clear? Yes, ma'am. Yes, Okay. तो i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी तो वो 2 हो जाएगी। अगेन ये कंडीशन चेक करेगा, इज 2 इज लेस देन इक्वल्स टू n है क्या, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। ये n की वैल्यू पूरे आपके एंड तक चेंज नहीं होने वाली है। ईच एंड एवरी इटरेशन में आपकी i की वैल्यू चेंज होती रहेगी, n की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी टिल योर एंड ऑफ योर प्रोग्राम। ठीक है, सो बाद में 2 चेक होगा, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है क्या, यस इट इज। फिर से अंदर आ जाएगा, i में क्या है ऑलरेडी, सम में क्या है, टेल मी। 1 है ना, लास्ट इटरेशन का 1, यस। तो 1 प्लस आई की वैल्यू अभी क्या है, 2 है, ये सुनो। तो 2 प्लस 1 क्या है, 3 हो जाएगा। ये 3 जो है सम में स्टोर हो जाएगा। ये सुनो, गेटिंग और नॉट गाइस, टेल मी। yes, यस, ma'am. देन अगेन आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, 3 हो जाएगा। 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, यस इट इज। फाइन, फिर से वो अंदर आ जाएगा। यस, अभी सम में क्या है, टेल मी, 3। ऐसा ना, लास्ट इटरेशन तक हम लोगों ने 3 कैलकुलेट करके रखा था। 3 प्लस नाउ फर्स्ट दिस इटरेशन में क्या है, आई की वैल्यू 3, 3 प्लस 3 6, फिर से सम में स्टोर हो जाएगा। गेटिंग और नॉट, टेल मी। आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होके 4 हो जाएगा। यस, 4 ऑलरेडी क्या है, सम में 6 है, लास्ट इटरेशन का 6, 6 प्लस 4 10, ऐसे आपका 5 तक हो जाएगा। यस, 10 हो गया, फिर 5 आ जाएगा। 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, यस इट इज। लेस देन नहीं है बट इक्वल्स टू है। ऑलरेडी सम में मेरा 10 है, 10 प्लस 5 इज नथिंग बट योर 15। यस, आई की फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी 6 होने के बाद। ये लूप आपका एग्जीक्यूट होगा क्या, इज 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, बोलो। 6 नहीं is है, not. 6 नहीं है, लेस देन भी नहीं है, इक्वल टू भी नहीं है, तो ये लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। और अभी आपके सम में ऑलरेडी 15 आ गया है, तो 1 to 5 नंबर्स का एडिशन क्या होता है, 15 होता है ना। Yes, ma'am. यस, तो बाद में आपको और क्या बोला है कि एवरेज भी निकालने के लिए बोला है। ना बोलो, एवरेज कैसे निकालते हो। Sum of the numbers upon total number of numbers. मतलब सम total digit. ऑलरेडी, हाँ सम ऑलरेडी हम लोगों ने लिया है, सम ऑलरेडी हमारे पास है। तो सम की वैल्यू डिवाइड बाय, अभी क्या करना पड़ेगा, 10। हम लोगों ने n, यस n की वैल्यू हमारे पास है 5, मतलब क्या है, वो n में स्टोर होने वाली है ना। तो वी विल डिवाइड दैट सम की वैल्यू बाय n। इज इट क्लियर? सो नाउ फाइनली वी आर जस्ट प्रिंटिंग, finally we are just printing summation as well as average, right? Summation is summation हमारा sum वेरिएबल में आ गया है, एंड देन यहाँ पे कॉमा रह गया, कॉमा दे दो, right? And finally we have to just print average as well. Average is, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे दो तो अच्छा हो जाएगा, हाँ ठीक है। एंड एवरेज की वैल्यू हम लोगों ने avg नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है, तो दैट आल्सो वी हैव टू स्पेसिफाई एंड रन। avg sum.py, right? and then try to run that। चेक करो, अभी मैं n की वैल्यू पूछ रहा है, मीन्स
कौन से नंबर तक आपको ये सम एंड एवरेज चाहिए, वो ये फिगर है सिंपलीफाई। सो जिस सेम वे से हम लोगों ने जिसका एक्सप्लेन किया था अभी, वही मैं 5 डाल देती हूँ। 5 करते हो एंटर तो 15 आता है, एंड 15 डिवाइड बाई 3, सॉरी 15 डिवाइड बाई 5, 5 3 जा 15। इज इट क्लियर? यस मैम। आ रहा है Yes. क्या करेक्ट? समझ में आ रहा है क्या? यस मैम। ओके फाइन। अभी मैंने यहाँ पे 50 भी डाला तो 1 to 50 नंबर्स का एडिशन होगा एंड उसका एवरेज निकलेगा। क्लियर है? देखो अभी 1 to 50, 1 + 2 + 3 + 4, ये 50 तक होगा एडिशन, समेशन आपको आ रहा है, और वो नए नंबर से डिवाइड बाय 50 होके आपका ये भी आ रहा है, एवरेज भी आ रहा है। क्लियर पर गाइस? मैम टेल मी। एन पर हाँ बोलो। नथिंग मैम। मैम अगर हमें ये लूप रिपीट करना है तो कैसे करेंगे रिपीट? कौन सा लूप रिपीट करना है आपको? लूप तो रिपीट ही तो हो रहा है। एंड आल्सो फाइंड एवरेज ऑफ इट। हाँ तो एवरेज भी तो निकाल रहे हैं ना, एवरेज के लिए आपको लूप नहीं की जरूरत है क्या? मैं कह रहा हूँ जब हम रन करेंगे प्रोग्राम तो बस वो एक ही बार पूछते हैं फाइंड मतलब एंटर वैल्यू ऑफ एन, तो वो एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से कैसे एग्जीक्यूट कर पाएगी वही प्रोग्राम? अच्छा मतलब हाँ, वो एक टर्मिनोलॉजी अलग है आपका, वो बता दूंगी मैं आपको। सिंपली वाइल में ओनली 1 लिखना बताइए, दैट लूप विल ऑलवेज ट्रू ऐसे कंसिडर होता है, ऑलवेज ट्रू, एंड वो बार बार एग्जीक्यूट होते रहता है, वो एक कंसेप्ट होता है। ठीक है, बता देती हूँ मैं, नेक्स्ट सेशन में बता देती हूँ। ठीक है, अभी आपका नेक्स्ट कोई है लेक्चर? नहीं मैम, अभी वो डिजिटल लाइब्रेरी करना है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, ठीक है ठीक है। तो ये वाइव तक हम लोगों ने किया है, ये आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, जितने आपको पॉसिबल है वो करो। ये फिबोनाकी का भी मैं बता देती हूँ कैसे करना है और क्या उसका लॉजिक होता है। फाइन, आई विल एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट ऑफ फिबोनाकी सीक्वेंस, हाउ टू जनरेट दिस फिबोनाकी सीक्वेंस। दीज टू आर सिंपलर वन ना गाइस, यू कैन ट्राई इट बाय योर ओन। जस्ट सेकेंड वन इज नथिंग बट यू हैव टू जस्ट प्रिंट स्क्वायर ऑफ नंबर। अगर n की वैल्यू 5 दिया है तो 1 से लेके 5 तक का आपका पूरा स्क्वायर निकालना है। 1 का स्क्वायर क्या है? 1 है, 2 का 4 है, 3 का 6 है, 4 का 16 एंड 5 का 25, लाइक दैट। क्लियर है? स्क्वायर टिल n नंबर्स। एंड देन इवन ऑड बिटवीन रेंज, इवन ऑड बिटवीन रेंज, अगर इसके लिए भी n की वैल्यू यूजर से लेना है। इफ सपोज यूजर ने n की वैल्यू 10 डाला है, देन 1 to 10 के बीच में वाले इवन एंड ऑड नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। इज इट क्लियर? पॉसिबल है क्या? यस मैम। पॉसिबल है तो करो, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। भाई ये दो तो मैंने दूसरे भी डिवीजन को घर पे ही करने के लिए बोला था, ये मैं खुद से करके दिखा देती हूँ। फिबोनाकी का थोड़ा सा लॉजिक अलग है, आई विल एक्सप्लेन दैट लॉजिक एंड विल परफॉर्म दिस फिबोनाकी सीक्वेंस का प्रोग्राम। यहाँ पे ही करेंगे, ये दो ट्राई करो, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है? मैम मैम मुझे डाउट है। हाँ बोलो ना। मैम एनडीएलआई का डाउट है, पूछूं? हाँ बोलो ना। NDLI? मैम एनडीएलआई वो वोटर्स डे का हमें करना था ना एक्टिविटी। डिजिटल लाइब्रेरी। हाँ 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 हाँ, अरे मैं सोच रही है कब हम लोगों ने टॉपिक कवर किया है, मैं सोच रही थी। हाँ बोलो, NDLI का क्या मैम है? वो अपलोड नहीं हो रहा है, अपलोड के टाइम वहाँ पर अरे एरर वो दिखा रहा है। नहीं नहीं, उन्होंने क्लोज कर दिया है गेस वो अभी। आपने सुबह से कुछ ट्राई नहीं किया क्या अपलोड करने का? नहीं, सुबह से कर रहे हैं ना मैम अभी। 4 बजे से पहले मैम बोला। अच्छा, और एक पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट एक ही अपलोड कर सकता है, ऐसा भी उसका कोई तो कंडीशन है ना? हाँ हाँ मैम, लेकिन एक भी अपलोड नहीं हो रहा है। एक भी नहीं हो रहा है? ठीक है, मैं देखती हूँ, ग्रुप पे आपको आ जाएगा, जो भी है ग्रुप पे देखो। ओके मैम। चलेगा? ओके मैम, थैंक यू। चलेगा चलेगा मंदार। ओके देन शैल वी स्टॉप? यस मैम। या, थैंक यू एवरीवन, बाय। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम।